And welcome to Navi's strategy session. Today, as per the schedule, we are going to discuss PIQ filling, and as well as we are going to discuss about some personality interview tactics. Okay, so we are going to start straight first from our introduction. Please raise your hands if you have joined this session for the first time for this this भी guidance program आपने पहली बार ज्वाइन किया है तो आज great many okay so good to know that many people are joining new also but इससे पहले ना हमने already बात कर ली स्क्रीनिंग पर TAT में स्टोरीज कैसे लिखते हैं अच्छी स्टोरीज क्या होती है और अच्छी स्टोरीज का आइडिया किस टेक्निक से हम उन स्टोरीज का आइडिया कंसीव कर सकते हैं और फिर उन पे स्टोरी बना सकते हैं हमने WAT वर्ड्स WAT सेंटेंसेस पे भी बात की SRT कैसे लिखते हैं इन अ गुड मैनर उस पे भी बात की हमने कल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात की थी और SDT कैसे लिखते हैं उस पे बात की इन सारे सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पे अवेलेबल है @prep यू कैन चेक दैट आउट लेटर बट आज का जो सेशन होगा PIQ पर्सनल इंटरव्यू वो उसके लिए पहले वाले सेशन देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है तो आज हम आज के काम पे फोकस करते हैं So I want all of you to write your entries for which SSB entry are you going to the SSB board. You can write it as NDA, CDS, TES, SSC Tech, like that. Secured All India rank 128 for ND 152 but unfortunately I could not join the academy because of medical reasons. Okay, so this is about a bit about me and about this program is that whatever I have come to learn with my experience from the learning of my mentors, friends, and some good discussions which I was fortunate to have some with some assessors and also like repeated friends who have given SSB 16, 17 times. Okay, so we are going to just focus on our part, on our bit, that what we can, how we prepare, and not only on that how should we prepare, but also हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम जहाँ SSB में जाएंगे तो परफॉर्म कैसे करना है ये सिर्फ प्रिपरेशन मैटर नहीं करती वहां जाके परफॉर्म भी करना मैटर करता है उसी से रिजल्ट आएगा ओके तो सबसे पहले PIQ फिलिंग पर बात करते हैं ठीक है सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू अ लिटिल जर्नी बिकॉज पर्सनैलिटी इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू एक काइंड ऑफ वार्तालाप है एक conversation है between an interviewing officer or the candidate and it takes place for around 45 to 60 minutes and it also most of the time depends on the interviewing officer okay so that interview revolves around your life and the discussion of the whole interview will revolve around your life and your past activities that what past decisions have you made what how why these three questions the interviewing officer tries to delve deeper into these three questions so now let us first see that past activities so it is an हमारी पास्ट लाइफ के बारे में हमारे डिसीजंस के बारे में डिस्कशन होता है और जो हमारे डिसीजन नहीं भी होते उनके बारे में भी डिस्कशन होता है कि आपकी क्या सोच है कि आप लाइक योर फादर इज डूइंग दिस आपकी क्या सोच है ओके सो दिस इज आवर स्टोरी हम टोडलर होते हैं फिर प्री स्कूलर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं फिर टीनेजर बन जाते हैं कोचिंग कॉलेज स्कूल एवरीथिंग एडल्ट we start going for interviews. Let's now first talk about PIQ. Stands for Personal Information Questionnaire and आपके SSB इंटरव्यू रूम में जाने से पहले आपका PIQ रूम में जाता है ठीक है
So actually I guess my noise cancellation mode is वो मैं फीचर ऑन पर ना बैकग्राउंड। तो PIQ फॉर्म आपके इंटरव्यू रूम में जाने से पहले PIQ फॉर्म जाते हैं एंड यू नो दिस वेरी वेल दैट प्री कन्फर्मेशन बायस कितना ज्यादा रोल प्ले करता है हम ह्यूमंस के डिसीजन टेकिंग एबिलिटी में, किसी चीज को परसीव करने की एबिलिटी में, किसी इंसान को आंकने की एबिलिटी में, असेस करने की प्रोसेस में। और लाइक यू ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। तो PIQ आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छे होने से मतलब क्या है, इस पे हम आगे बात करेंगे कि एक अच्छा PIQ होता क्या है। तो ऐसे हमने कल बात की थी नो योरसेल्फ, improve yourself, then accept yourself when yourself is around, and then express yourself in the system, right? So same we have to do it with PIQ also, as we have already improved ourselves, as I am considering कि आप SSB preparation में खुद को improve कर लोगे, तो उसके बाद में आपको खुद को accept करके इस PIQ फॉर्म में खुद को express करना है, ठीक है? तो हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं PIQ से रिलेटेड हर एक कॉलम का। फर्स्ट ऑफ ऑल PIQ फिलिंग करते वक्त अगर आपकी रनिंग हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी से मतलब समझ में नहीं आएगी, हो सकता है अगर चांसेस हैं कि वो समझ में नहीं आएगी, आप कोशिश कीजिए कि आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, जो भी लिखें अपर केस लेटर्स में, ठीक है? जो ये जैसे ये वाली लाइन लिख रही है ना यहाँ पर, ये वाली ऐसे लिखें कैपिटल लेटर्स। ओके, सो ये आपको नहीं भरना है। सिलेक्शन बोर्ड, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, ये सब फिक्स्ड है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, SSB गेट के अंदर बढ़ने से एंटर करने से पहले अपना UPSC रोल नंबर दिमाग में डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अच्छे से याद कर लेना। वहां आपको कोई फोन नहीं देगा कि आप उसमें PDF खोल के देख लोगे, ठीक है? हाथ पे लिख लेना और उसे याद कर लेना, बेसिकली बहुत जगह काम आता है, ठीक है? आपका UPSC रोल नंबर, जिस एंट्री के लिए आप SSB देने जा रहे हो, वो वाला रोल नंबर, ओके? फिर उसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सबकी सेम होती है। हाँ, आप जब कुछ भी लिख रहे हो तो लेफ्ट मोस्ट से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? लेफ्ट मोस्ट से, ताकि आपके पास पूरा स्पेस आप यूटिलाइज कर पाओ। फॉर फादर्स नेम, अगर इंस्ट्रक्शन में कहा गया कि आपको मिस्टर मिसेस नहीं लगाना तो ठीक है, अगर नहीं बताया गया कुछ भी तो मैं कहूंगा मिस्टर लगाइए अगर वो सिविलियन है। अगर वो सर्विंग है और कोई जैसे डॉक्टर प्रीफिक्स है या फिर सिपोए प्रीफिक्स है, लांसमैन प्रीफिक्स है, सूबेदार मेजर प्रीफिक्स है, कैप्टन, व्हाटएवर, तो आपको जो है वो लिखना है और काफी प्राउडली तरीके से लिखना है, ठीक है? डोंट बी शाय, नेवर बी शाय, because they are your friends, you must be proud of them. So next, place of maximum residence, इसमें सिर्फ 3 चीजें, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिर्फ 3 चीजें, ठीक है? अगर गांव है तो विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, बस 3 चीजें। सेम विद अदर 3 आल्सो। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस मतलब आपने अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ बिताया है, कौन सी जगह है। और आप प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, आप कहाँ हो, फिलहाल कहाँ रहते हो। अगर आप कहीं कोचिंग करते हो तो आप वहां का लिख सकते हो स्थान। और प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस मतलब आपका जो घर होता है ना, वो घर कहाँ है, वो स्थान यहाँ लिखना है। और इस लाइन का मतलब है कि जिस शहर में आप रहते हो तो वो शहर क्या डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर है। जैसे राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप जयपुर में रहते हो तो आपको यहाँ यस करना है। अगर आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई अदर सिटी या गांव में रहते हो तो आपको नो करना है। आई होप आई एम क्लियर। एनी डाउट्स? Any doubts? And please don't underestimate it. PIQ filling is really important because it sees and it tells things about you before you enter the interviewing officer's room. Yes, Sujit. भाई वो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम थोड़ा सा फिर से बताना। स्टेट
उसमें सिंपल, अगर आप गांव से हो तो विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। अगर आप शहर से हो तो शहर का नाम, फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, और फिर स्टेट का नाम, सिंपल। और हाँ, उसके साथ पॉपुलेशन भी लिखना है, विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। अगर गांव की पॉपुलेशन आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो कि 2000 होगी, 1500 होगी, राउंड अप करके। वो सब स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में लिखना पड़ेगा, वो कितना पॉपुलेशन है। नो नो नो, वो सब जहाँ आप रह रहे हो, जैसे अगर आप विलेज में रहते हो तो विलेज की लिखो, दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली शहर की पॉपुलेशन लिखो, ठीक है। अच्छा, तो वो सब जो मैं लिखूंगा वो सब वो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाले वो जो कॉलम है उसमें लिखना पड़ेगा। हाँ, मैं एक बार, मेरे पास मेरा PIQ भरा हुआ है तो मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो, मैंने ऐसे लिखा है, बकराना जयपुर राजस्थान 2000 अप्रोक्स, ठीक है। आप ये डाटा सर्च कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। Okay. So yes. Any other doubt? No. Thank you. Okay. So next, fifth column. जहाँ पर आपको वापस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिखना है, रिलीजन लिखना है। रिलीजन में आपको हिंदू मुस्लिम नहीं लिखना, रिलीजन का जो नाम होता है वो लिखना है, जैसे हिंदुइज्म। अगर इस्लाम लिखना है, जैसे मुस्लिमिज्म नहीं होता, इस्लाम होता है वैसे। और क्रिश्चियन हो तो जो भी मतलब एप्लीकेबल है वैसा लिखना है आपको। ऐसे इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लिखना है, रिलीजन का जो नाम है वो लिखना है। और इसमें आप अगर SC हो, ST हो या OBC हो, अगर आप जनरल हो तो आप वो भी लिख सकते हो। मदर टंग आप यहाँ लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या तमिल या फिर व्हाटएवर द केस सेज। या डेट ऑफ बर्थ लिखते टाइम जिस टाइम पे PIQ फिलिंग करवा रहे हैं, जो ऑफिसर आपके सामने खड़े हैं, इट कैन बी DSO और इट कैन बी एनीवन। तो डेट ऑफ बर्थ उनके फॉर्मेट में लिखना, जब वो बताए ना कि भाई आपको डेट ऐसे 08 OCT अक्टूबर 2005 करके लिखना है तो वैसे लिखना है। अगर वो बताएं 08 अक्टूबर के लिए 10 यूज करना है स्लैश लगाकर, और फिर स्लैश लगाकर 2005 लिखना है, तो वैसे ही करना है। पता है क्यों करना है? इंस्ट्रक्शंस आर सुप्रीम। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो जनरली जो होता है वो मैंने बताया, पर आपके स्पेसिफिक केस में जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे वो सुप्रीम है, उनको ही फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ से आप जनरल चीजें सीख के जा सकते हो, प्रैक्टिस करके जा सकते हो कि मैं PIQ ऐसे फिल करूंगा, पर वहां जो बताया जाए, जिस फॉर्मेट में लिखना है आपको, वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अगर आपने सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो इनकंसिस्टेंट आपका PIQ लगेगा। बाकी कैंडिडेट्स ने एक अलग तरीके से बनाया, आपने थोड़ा अलग तरीके, तो दिखाएगा आपकी लिसनिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, आप सुनते नहीं हो, आप अपने चलाते हो। और फौज में डिसिप्लिन एंड टेकिंग ऑर्डर्स इज मस्ट। ओके, पेरेंट्स अलाइव, अगर आपके दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं तो यस कर दीजिए, अगर दोनों में से एक भी नॉट अलाइव है तो नो कर दीजिए। और फिर आप जैसे मेंशन करते हो, आप बताएंगे आपको कि आप इस तरीके से मेंशन कीजिए, आप वो तरीका यूज करके मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर नहीं जिंदा है तो आपकी एज क्या थी जिस टाइम पे उनका देहांत हुआ, तो आप वो लिख सकते हो। और मदर और फादर में आपको टिक लगाना है, कुछ नोट अलाइव। अगर अनफॉर्चुनेट केस है, दोनों नहीं है, तो दोनों पर ऐसे टिक लगाना है। और वापस रिपीट करता हूँ, इंस्ट्रक्शंस पर कान खोल के। सो इसी वाला, अगर आपको गार्जियंस, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन की इनकम वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर फादर की एजुकेशन लिखना है, वो जो काम करते हैं वो लिखना है, और जो महीने में कितना कमाते हैं वो लिखना है। अब कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज को मेंशन करते हैं, लाइक if their father is a retired police officer and now is working in some security department, तो सिर्फ एक चीज बताते हैं, पेंशन नहीं करते। So yeah, it is up to you। बाकी मैं कहूंगा कि सब कुछ मेंशन करना है इस पर। मदर्स एजुकेशन आपको लिखना है, फिर ऑक्यूपेशन जो है वो लिखना है, जैसे दे आर हाउस, शी इज हाउसवाइफ, देन होममेकर, हाउसमेकर, कोई भी एडजेक्टिव यूज करते हैं। और इनकम पर मंथ जो है वो लिख दीजिए, सिंपल। अगर आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर 2
से ज्यादा है तो आप यहाँ पर यंगर को कट कर ऊपर एल्डर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके रियल सिबलिंग्स 4 से ज्यादा है तो आप नीचे कॉलम बनाकर फिर लिख सकते हो। और आई वुड सजेस्ट अगर ज्यादा है तो आप ऐसे ना कि इग्नोर कर दो लिखना, नो दैट इज वेरी बैड, वो अनएथिकल होगा थोड़ा, तो आप नीचे एक कॉलम बनाकर लिख दो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। और हाँ, आजकल ना PIQ थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है किसी किसी बोर्ड में, तो उसमें सिर्फ इतना ही चेंज है कि क्लास 10th और 12th और ग्रेजुएशन के अलग अलग सेमेस्टर वाइज मार्क्स पूछ लिए जाते हैं और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहना कि आप अपने मार्क्स याद करके जाओ कि कौन से सेमेस्टर में कितने थे या फिर कौन से सब्जेक्ट में कितने थे। ओके, so now coming to the 7th column, yes, so this is एक और बात कि यहाँ पर मतलब मैं कहूंगा कि आप जो सच है वो लिखिए तो बेटर रहेगा। कभी भी ना इनसिक्योर फील नहीं करना है आपकी रियलिटी के बारे में। यू हैव टू बी वेरी प्राउड कॉन्फिडेंट इन एक्सेप्ट देगा। पता नहीं आप तो पूरी दुनिया को अपने बारे में अच्छा सोचवाने के लिए तो एक पीपल प्लीजर बन जाओगे। प्लीज डोंट केयर अबाउट पीपल, डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट इट इज, डू व्हाट इज not other stuff. 7th, check record, education record। तो इसमें आपको फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल का नाम लिख देना है, बोर्ड CBSE, HPSC, RPSC जो है वो लिख देना। जिस साल में आप पास आउट किए क्लास 10 1918 जिसमें भी आप पास आउट किए वो वर्ष लिख देना है। डिवीजन और मार्क्स लिखने हैं, तो अगर 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, और जो भी होता है वो आप नीचे वाला आप क्राइटेरिया बाद देख सकते हो। और उसके साथ में मार्क्स को परसेंटेज में मेंशन करना। अगर परसेंटेज में नहीं है तो आप CGPA भी मेंशन कर सकते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज है वो आपको मेंशन करना है। बॉर्डर का मतलब है कि आप वहाँ हॉस्टल में रहते थे या फिर आप डे स्कॉलर कि आप रोज जाते थे। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। जब हम आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की बात करते हैं तो इट इज जस्ट नॉट कि आपके पास कोई बड़ी सी ट्रॉफी होनी चाहिए या फिर अच्छी अच्छी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए टू justify your outstanding achievement. No, it like what an achievement is. What is the definition of achievement? Can anyone unmute themselves and tell? Yes, Pratik, go ahead. Sachin sir, I want to know that in case if I have, for example, I have done a computer course and should I write it in the professional or should I write it in the that outstanding achievement or anything? You have done a computer course, तो वहाँ ना अब देखो मैट्रिक के बारे में बात होगी ना, तो क्लास 10 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड। Sorry to interrupt sir, I did it after 12th, means in my graduation it was not like under the university, it was like it is under the Ministry of IT and something. So yeah. Okay, so yes, you can mention it in graduation if you think it is a part of educational record and it should be mentioned with graduation, you can mention। और हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि अचीवमेंट क्या होती है और हमें कौन कौन सी चीजें किस ऑर्डर में और किन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन को मेंशन करना चाहिए और किन को हम इग्नोर कर सकते हैं। Right now my question is, can any one of you unmute themselves and tell what is an achievement? Anyone? Yes, Sachin, if someone has participated in the inter-college quiz competition, inter-school quiz competition. Okay. Achievement can be considered as that is something apart from the whole class or something that we should have put efforts and have good results upon that thing, which we should be proud on ourselves. Exactly. Now, you are getting closer to the definition of achievement. I want to add answer. Yes. I think achievement is something that a person specifically he thought that I have done this outstanding. So yeah, I think it will be an achievement for him or her. Yes, great. Yes, Monica. I think Pratik mentioned like what I was saying. Yes,
अचीवमेंट इज समथिंग जिस पे हमें प्राउड है, हाँ हमने कुछ किया है. Mahendra, doing something outstanding in your work on education and academics. Okay, cool. So now we were discussing achievement और हमारे पास both different kinds और kind of definition है. और जैसे हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे सटीक जो डेफिनेशन मुझे लगती है वो है कि कोई ऐसा काम हमने पहले अपने पास्ट लाइफ में किया है ना, जिसको सोच के ऐसे लगता है, जिसको सोच कर और क्या बोलते हैं चेरिश, उस मोमेंट को हम चेरिश करते हैं, खुश होते हैं और प्राउड होते हैं उस चीज के बारे में, that yes I've done something. So it can be a little achievement like you have done 200 push-ups in an hour. It can be anything else. It can be anything. But आप जैसे हम मैट्रिक के बारे में लिखना है तो मैट्रिक के दौरान अगर आपके 80 नंबर आए मैथ्स में और अगर आपको लगता है कि 80 नंबर जो मेरे आए उन 80 नंबर को मैं वापस से सोचता हूँ, याद करता हूँ तो मजा आ जाता है यार कि मैंने कुछ किया है, कि मेरे इतने नंबर भी नहीं आ रहे थे पर मैंने मैथ्स में इतनी मेहनत की, टेस्ट लगाई, ये किया वो किया तो अब मेरे 80 नंबर आए. तो इट इज एन अचीवमेंट फॉर. सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी पर्सनल थिंग टू यू. जो भी चीज आपको खुशी दे आप वापस मुड़ कर देख पाए और उस मोमेंट को चेरिश कर पाए, वो अचीवमेंट है. और हाँ बस इस वाले कॉलम में यही क्राइटेरिया है कि वो मैट्रिक और एजुकेशन से रिलेटेड हो. ठीक है, ये नहीं कि आपने मैट्रिक में बास्केटबॉल खेली थी तो वो यहाँ लिख दी है, क्योंकि हम ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, फिर कम, उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट आपको लगता है, फिर आप ऊपर के 2 या 3 जितने भी इस कॉलम में आए वो मेंशन कर सकते हैं. वेरी ग्रेट. So next is 10th 12th का भी मैटर नहीं करता लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, सर्टिफिकेट्स क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो उस चीज के बारे में, वो मैटर करता है. ठीक है, थैंक यू. क्योंकि अगर आप खुद को कंपेयर करने लगोगे तो आप कहोगे कि नहीं यार मैंने सीबीएसई टॉप नहीं किया तो रोज नोट एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, फिर खाली छोड़ दोगे क्या? खाली छोड़ने से बेहतर है आपने कुछ लिखा, आप किसी चीज को चेरिश करते हो. इट्स ब्यूटीफुल देन नॉट चेरिशिंग एनीथिंग एंड जस्ट बी blank while asking for good moments in your past life, right? Thank you. Yes, Rahul. So there were some kind of competitions in college, like quiz competition and photography competition. I have participated in them and got second or third rank. But I don't have. Sorry. Educational record ही mention करना है इस वाले program में, बाकी सब record करना. Oh. Great. So let's now continue our discussion further on age, years and months. और जिस टाइम पे आप एसएसबी दे रहे होगे तो उस टाइम के मंथ्स कैलकुलेट करना कि उस टाइम पे आप कितने साल और कितने मंथ हो गए, और हर बार एसएसबी में जाने से पहले पीआईक्यू की शक्ल वापस से देखते रहना. हाइट मीटर्स में लिखनी है और मीटर में लिखते वक्त ये ध्यान रखना 181 मीटर मत लिख देना, 1.81 मीटर होना चाहिए. ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना. वेट किलोग्राम में ही होना चाहिए, पाउंड्स में मत लिख देना, नहीं घबरा जाएंगे आप. So now let's coming on to the 9th, present occupation and personal monthly income if any. अगर आप ट्यूटर भी हो तो आप लिख सकते हो यार ट्यूटिंग स्टूडेंट्स, और आपकी जो मंथली इनकम है वो आप लिख सकते हो. अगर नहीं है तो आप एनए या फिर जो भी पीआईक्यू ऑफिसर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाए उस हिसाब से इसको फिल कर सकते हो. नेक्स्ट कमिंग टू द 10th कॉलम, अगर आपने एसएससी ट्रेनिंग की है यस तो फिर आपने की है तो कितनी ट्रेनिंग की है, विंग कौन सा था, एयरफोर्स आर्मी नेवी, डिवीजन कौन सा मिला, सर्टिफिकेट कौन सा. 11th नाउ इट्स इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. आपने कौन से गेम्स और स्पोर्ट्स में
पार्टिसिपेशन किए, आपने पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, या नहीं पूछ रहे आपने इंडिया के लिए खेला है नहीं, आपने पार्टिसिपेट कौन से गेम्स है स्पोर्ट्स में। तो इसमें हम सेम टेक्निक लगाने वाले हैं। रफ पेज लीजिए, उसमें सारे जितने भी आपने गेम्स स्पोर्ट्स खेले हैं वो लिख दीजिए। और पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ, पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। इसमें आपको बताना है कि आपने कितने टाइम के लिए खेला था। इट इज बेटर टू राइट कि आपने 2016 से 18 तक खेला था, अदरवाइज आप 2 साल भी लिख सकते हो। अगर PIQ ऑफिसर जो आपको भरवा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको 2 साल लिखना है, तो आप ऐसा ही कीजिए। अदरवाइज आप ये याद करके जाइएगा पहले से कि मैंने इस साल से इस साल तक ये गेम खेला। अगर आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किए हैं तो आप बता सकते हो, कॉलेज को किया है तो बता सकते हो, यूनिवर्सिटी को किया है तो बता सकते हो, अगर आपने स्टेट को किया है तो बता सकते हो, अगर आपने गांव को किया है तो बता सकते हो, मोहल्ले को किया है तो बता सकते हो। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो भी रही कि आपने एक बोला, आपने सेंचुरी मारी, हाफ सेंचुरी मारी, विकेट्स लिए, आपने अच्छी फील्डिंग में कैच पकड़ी, कुछ भी जो आपको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है वो आप बता सकते हो। नाउ ट्रिक इज द टेक्निक इज कि आप सारे गेम स्पोर्ट्स जितने भी आपने जीवन में खेले हैं वो लिख दीजिए रफ पेज पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें आपको लगता है कि ये मैंने ज्यादा प्रोफेशन ज्यादा पैशनेटली और ज्यादा टाइम के लिए खेला, उसको आप पहली प्रायोरिटी पे रखें, 2 3 4। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें 4 या 5 गेम्स और स्पोर्ट्स ही लिखें, ठीक है, उससे ज्यादा ना। और अगर आपके पास कम है तो आप जितने भी खेलने सारे लिख देना, ठीक है, 3 या 4 तो लिख देना। जितने सबने खेले होते हैं, कबड्डी या बैडमिंटन, कुछ भी, क्रिकेट तो सबने खेला होता है, तो आप मेंशन कर देना, नो प्रॉब्लम। और कई कैंडिडेट सोचते हैं कि नहीं क्रिकेट नहीं लिखेंगे, क्रिकेट नहीं लिखेंगे, अदरवाइज इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क क्लारिफिकेशन। बता देना भाई कि मैं क्रिकेट खेलता था सर, मैं विकेट की जो स्टंप है ना उसको लेकर इंची टेप से नहीं नापता था, ठीक है, बता देना नहीं पता तो, सिंपल, honest show। और it's okay to not know things, you are there to, he is assessing your personality, he is assessing that how will you handle in a particular situation where you don't know the answer of question, where you don't know what the solution of the problem is। वो देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि आपको पता हो, आपको फैक्ट्स याद हो, ठीक है। अगर स्कूल में पार्टिसिपेट ना किया हो किसी भी, कभी तो किया होगा ना, अगर रिप्रेजेंट नहीं भी किया तो NA लिख दो, जरूरी नहीं है, ठीक है, आपने खेला है वही बहुत है, तो पर लिखना जरूर है। आप इग्नोर मत करना प्लीज, क्योंकि इग्नोर करोगे तो आप खुद को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अगर आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे तो असेस किसको करेगा, नो वन को, ठीक है। तो खुद को एक्सप्रेस जरूर करना है और जो वो बताना है। और ये ध्यान रखना कि पहले ना खुद को जानना बहुत जरूरी है। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम खुद के बारे में ऐसे ही रैंडमली जो दिमाग में ये चीजें वो लिख दिया, कुछ चीजें हम खुद भूल जाते हैं खुद के बारे में हमने क्या क्या किया, ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखें। नेक्स्ट कॉलम इज हॉबीज और इंटरेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बताता है कि आपको अगर चॉइस दी जाए, आपको अगर फ्रीडम दी जाए तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे। ये वाला सेक्शन ये वाली चीज बताते हैं कि अगर आपको आजादी दी जाए कि भाई कुछ भी कर सकते हैं तो आप क्या करोगे, ये कॉलम बताते हैं वो। तो अगर आपकी जो भी हॉबीज है और इंटरेस्ट है जो भी है वो लिख दीजिए। अगर आप किताबें पढ़ना पसंद कीजिए, गेम्स खेलना पसंद वो लिख दीजिए। हाँ, ऐसी चीजें जो कंज्यूमरिज्म में आती है, लाइक यू कैन नॉट राइट कि आई लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू कैन नॉट राइट कि आई लाइक वाचिंग रील्स एंड स्क्रॉलिंग रील्स फॉर आवर्स, यू कैन नॉट राइट बिकॉज़ यू योरसेल्फ डू नॉट राइट लाइक इट। अगर आप खुद से पूछोगे ना कि क्या मुझे पसंद है जो मैं घंटों तक रील देखता हूँ, आप खुद बोलोगे नहीं यार मुझे वो पसंद नहीं है, बट वो ना एक अंदर से पता नहीं क्या होता है वो मैं देखने लगता हूँ अपने आप, देखने के बाद मजा आता है। ऐसा नहीं कि आई रियली वांट टू डू इट एंड आई लाइक डूइंग इट। जब आप रील्स को बंद करते हो तो आप खुद से थक जाते हो, अंदर से ऐसे खोखला फील होता है, ठीक है। तो यू डोंट लाइक डूइंग इट, यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ मजबूरी है आपकी वो देखना, आपको थोड़ा सा लत लग गई है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब देखते हो, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ऐसी पास टाइम एक्टिविटीज लिखनी है जो आपको सच्ची में पसंद है खुद से। जैसे आपको निटिंग करना पसंद हो सकता है, आपको पौधों में पानी देना पसंद हो सकता है, आपको खेलना पसंद हो सकता है, आपको दौड़ना पसंद हो सकता है, आपको कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग,
anything which you like. और सेम मैं वापस से कहूंगा कि आप सारी हॉबीज और इंटरेस्ट लिख दीजिए, सारे हॉबीज और इंटरेस्ट लिख दीजिए, और जो वाले हॉबीज और इंटरेस्ट आप पैशनेटली फॉलो करते हो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, ठीक है? क्योंकि अगर आप जो पैशनेटली फॉलो करोगे और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आप अच्छे आंसर दे पाएंगे, ठीक है? दैट्स इंपॉर्टेंट। यस महेंद्र। Sir, can I mention my hobby watching Tarak Mehta ka Ulta Chashma? भाई मैंने कहा ना कि आप सारी हॉबीज और इंटरेस्ट मेंशन कर आप अपने रफ पेज में लिख दीजिए, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप उनको पैशनेट की आ चुका है। जाओ ओके, कंटिन्यूइंग आवर आंसर कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जिसके बारे में आप जितना पैशनेट हो। अगर आप पैशनेटली देखते हो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आप जरूर लिखिए। रिटर्निंग ऑफिसर आपके साथ जो करेगा वो मुझे नहीं पता। जैसे देश Sir, my question is that as there is a lot of time in CDS, OT, SSB, around 3 to 4 months. So if I pick my hobby now and I do it for 3 to 4 months, then should I mention it? Because I think doing hobby takes a lot of time. Yes. If you like enjoy, मैं तो कहूँगा कि अगर मान लो आपने एक हफ्ते से कोई एक्टिविटी स्टार्ट की और अब आपको मजा आने लगा है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। बाकी 3-4 महीने तो बहुत होते हैं। You can develop some hobbies which are like really giving in nature, like reading books, listening to podcast, and exercising, running, swimming, like activities like these, which will improve you in some manner, are really good hobbies or good pastime activities because they somehow help you grow. So I feel this is my bias towards looking at hobbies or interests. Yes, Alok. Sir, can you please elaborate between hobbies and interest? हाँ, ये वो है लाइक जनरल परमानेंट क्वेश्चन जो कोचिंग से होता जाता है। हॉबी और इंटरेस्ट, हॉबी जो आप कंटिन्यूस बेसिस पे करते हो, पास टाइम है ना, और इंटरेस्ट जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है पर आप रेगुलरली परस्यू नहीं कर रहे होगे, जैसे इंटरेस्ट हो सकता है जियो पॉलिटिक्स में, वो आपका इंटरेस्ट है, हॉबी नहीं है वो, है ना। बाकी दोनों लिखना तो इसी कॉलम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ये सभी जीत Playing chess. हाँ, it's a really good activity. Thank you, sir. Yes, and please don't seek validation from my side. You yourself know यार what is good and what is bad. You are adult, है ना। आप छोटे बच्चों को ज्ञान देते हो ना, उस हिसाब से खुद को बेसिस करते हो कि बेटा शॉर्ट्स नहीं देखते, वही चीजें खुद पे भी लागू करते हो। Yes, Rupesh. Yeah, so actually I have a doubt ki whenever we write hobbies and interests, so is there any like question set that we need to prepare from it so that if the interviewing officer asks, so we'll be able to tell him? भाई देखो, प्रिपेयर करना और झूठ को याद रखने की जरूरत पड़ती है कि वो झूठ होता है, और आपको हॉबी के बारे में प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी तभी ज्यादा कि जब वो ना झूठ होगी, ठीक है। अगर आप अगर आपकी रीडिंग बुक्स हॉबी है और आप एसएसबी के पहले एक बार देख जाओगे कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, इसके ये राइटर्स हैं, इस बुक की समरी, और हाँ, जब भी बुक पढ़ो ना कोई, तो एक बात ध्यान रखना, हर चैप्टर के बाद में थोड़ी सी होती है ना बीच में, वहां पर कुछ लिख लिया करो जो आपने चीजें सीखी, और पूरी बुक फिनिश करने के बाद में 2 या 3 पन्नों में उस पूरी बुक की समरी लिख दिया करो, ठीक है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आप जैसे एसएसबी से पहले जा रहे हो तो उन सारी बुक्स की समरी आप वापस से पढ़ सकते हो, दैट विल रियली हेल्प यू in SSB. And same goes with other stuff also. If you are passionately running for long distances, before going to SSB, take out your Google Fit app, उसमें जनरल खोलो और देखो आपने क्या क्या रन्स किए हैं, जो रिमार्केबल रन्स थे उसकी टाइमिंग याद कर लो, उसको देख लो, उस मोमेंट को याद कर लो कि कितना किए हैं, कितनी बार आपने कितने किलोमीटर दौड़े हैं, तो दैट विल हेल्प यू यार। अदरवाइज यू योरसेल्फ वुड नॉट बी अवेयर कि आप किस लेवल पे और आपने क्या क्या मैडनेस की इन द पास्ट, और या फिर क्या क्या अचीवमेंट्स की। Great. So I guess we are able to
understand what PIQ requires. So now the 11th, you can avoid sports, and you can avoid sports for a reason because there is a separate column for it. 11th है ना, अगर आप उसमें लिख दोगे तो वापस से लिखना जरूरी, बाकी स्टिल अगर आपको लगता है कि ये मेरा है इंटरेस्ट बड़ा तो आप लिख सकते। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य विषयेतर सामूहिक कार्यकालों में भागीदारी। हाँ राहुल गुप्ता, इफ यू रियली लाइक डूइंग कि मुझे नंबरों से मतलब नहीं है, मुझे बस सोल्व करना है, सोल्व करने में मजा आ रहा है, यू कैन मेंशन दैट आल्सो। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते और पता एसएसबी के दौरान में मैथ सोल्व कर रहे हो, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड है वो भी स्टडीइंग पॉलिटी, so even when she was preparing for SSB, she used to read polity every day, so it can be. So let's move on to the discussion further. Yes, it is a good hobby, solving Rubik's cube. देखो यार, मुझे क्या पता होगा what is right and what is wrong for you. You yourself decide. Criteria वही है, descending order. What do you feel passionate about is comes first, and rest next. Okay, so let's move on. Yes, Pratik, ask. I have a just simple question. I have been into NSS and currently I am with NSS within 2 months, and my SSP is of December month. So should I mention it there that I am into NSS and I have joined it like 5 months ago? And why should not you mention it? Why should not? Is there any specific column should I mention, or in the activities itself I should mention? Yes. अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, सामूहिक एक्टिविटी है, जितना मैं एनएसएस को समझता हूँ कि वो एक लाइक आप कम्युनिटी में जाके हेल्प करते हो, राइट? Yeah, it is like a social activity. हाँ, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही तो है, आप इसमें मेंशन कर सकते हो। You got it. Okay, thank you. So पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के आपने जो भी कार्य किए हैं जीवन में, वो आप इस में मेंशन कर सकते हो। अगर ग्रुप एक्टिविटी है तो और भी बेहतर रहेगा। स्पोर्ट्स नहीं मेंशन करना है इसमें, लाइक आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाया था वो मेंशन कर सकते हो, आपने कोई टीम के साथ जो एक छोटा प्रोजेक्ट से या फिर कुछ भी किया था, कोई प्रोजेक्ट से आपने उन पे काम किया, आप वो सारी एक्टिविटीज इसमें मेंशन कर सकते हैं। यस अंशुमन? Can I add? When I was in class 8th, so I was in scout. हाँ, आप मेंशन कर सकते हो, आप स्काउट में थे। पर देखो एक बात ध्यान रखना कि वो रेलेवेंट पैशनेट होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप ये नहीं कि आप बहुत पुरानी चीजें पे रिलाई कर रहे हो, आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में जो कर रहे हो वो चीजें भी हाईलाइट करती रहनी चाहिए, कि फिर वो PIQ पढ़ते टाइम देखेंगे कि ये तो यार पहले सब कुछ करता था, छोड़ दिया। तो आपको प्रेजेंट और पास्ट का थोड़ा सा सही मिक्स लाना है, ठीक है, बैलेंस। Okay, sir. Thank you. Okay, so yes, Mahendra. Like Sachin sir, I am also in NSS, but like there is a column in which you have to mention the period. But in NSS there is there is a camp, like 1-day camp, 7-day camp. Should I mention the whole months when I joined the NSS, or specifically that days? नहीं, अगर देखो एक्टिविटी ग्रुप आपने एक्टिविटी मेंशन कर रहे हो उसको, तो आप ऐसे इसमें ऐसे मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये काम किया था, एनएसएस में ये काम किया था, तो आप उसका ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन लिख सकते हो। और मैं तो कहूंगा कि आप ऐसा ही करिए, और फिर वो पूछेंगे जब आप एनएसएस के बारे में फर्दर बात कर सकते हैं, जब आपका इंटरव्यू में बात होगी, कि सिर्फ PIQ से थोड़ी ना सब कुछ बताना। ओके, Kapil? Yes, sir. In extracurricular activities, can I mention the project I have done in my final year? Yes. That was बस ये ध्यान रखना कि वो आपने अच्छे से किया हो, मतलब सिर्फ कई बार थोड़े
जुगाड़ करके करते हैं ना, वो ना हो, क्योंकि आपको फिर सवालों के जवाब देने। Yes, sir. And sir, I also participated in annual fest that was cultural fest. So I was in dancing activities. So can I mention about that? फॉर श्योर, अरे यार मेंशन करो, जितना आप मेंशन कर सकते हो कॉलम को भरना है, और बस ये ध्यान रखना कि कॉलम में 3-4 चीजें जो लिखो वो आपकी लाइफ में से टॉप की चीज आप लिख रहे हो। Okay, sir. जो आपको टॉप का लगता है वो दुनिया के पर्सपेक्टिव पे मत जाना। यस राहुल। सर जैसे मैंने ड्यूरिंग माई बीटेक मैंने 1 मंथ के लिए जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे ट्रेनिंग करा था, बट वो ऐसा कि मैंडेट है हमारे कोर्स जो है ना उसमें सभी के लिए कंपलसरी, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर में आएगा या मतलब आपके पास और ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है लिखने को, तो आप वो लिख सकते हैं। वो तो है, जैसे एमएस पार्टिसिपेशन, टेक फेस्ट में पार्टिसिपेशन। हाँ, तो बस वो वाली चीजें हाईलाइट कीजिए और इसको असेंडिंग में लास्ट में ऐड कर सकते हैं, मतलब हाँ लास्ट में लिख दीजिए अगर स्पेस है तो। ओके सर। So, if there are no any other doubts, let's move on. और हमने इस पे बात कर ली कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का क्राइटेरिया सेम है जिस पे हमने पहले बात की थी। जो पास में देखते हुए आप चीजों के लिए खुश हैं, प्राउड है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। Now comes position of responsibility और offices held in NCC, scouting, sports team, extracurricular group और any other fields, है ना? इसमें आप कुछ भी जैसे मैंने मेंशन किया था कि मैं ग्रुप चलाता हूँ, तो ये तो एनसीसी में आता है ना, स्काउटिंग में आता है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप में, हाँ इसमें काउंट हो सकता है, बट आप कुछ मेंशन कर सकते हो यार, विच यू आर डूइंग समथिंग and you are happy about it and you were doing when you were doing that you were passionately doing that। और हाँ ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा पोजीशन जितने भी आपने होल्ड किए हैं, और मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा पोजीशंस नहीं रही, तो मैं तो सारी मेंशन कर देता था, इवन कि मैं मॉनिटर बना था स्कूल में, सब मेंशन। Okay, any other doubt regarding this particular college? Any doubt? No. So let's come on to the 12th. इसमें लिखा है nature of yes Rupesh. So like if the interviewing officer asks like why didn't you participate in this investiture ceremony and becoming a prefect and this, so what would be? हाँ होता है कई बार पूछते हैं कि आपने कॉलेज की एनसीसी क्यों नहीं की। It is asking same question कि आपके पेरेंट्स के बर्थ, आपने बर्थ लिया, आपने नेबर्स के होम में क्यों बर्थ नहीं है, इट्स लाइक अ स्टूपिड क्वेश्चन, यू योरसेल्फ नो इट, ठीक है, बता दो नहीं जो असली रीजन है। ये मुझे पसंद था जिस टाइम पे ये वाला रास्ता मुझे दिख रहा था, तो मैं इस रास्ते गया। सर मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीसी करना गलत है या फिर जो ये चीज आप बता रहे हो ये करना गलत है, बिल्कुल अच्छा है, पर सर जिस टाइम पे मुझे ये रास्ता दिखा और मुझे रास्ता दिखा तो मैं चला गया सर, और मुझे मजा आया सर इस रास्ते में। आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई डोंट रिग्रेट इट। ठीक है, ओके, तो हम इंटरव्यू से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं साथ ही साथ। नेचर ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन हो सकता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो सकता है। चॉइस ऑफ सर्विस, आप जैसे आर्मी के लिए जा रहे हो तो आर्मी पहले भरोगे 01 लिख के, फिर सेकंड प्रेफरेंस अगर नेवी है तो ऐसे जो एनडी में होते हैं बेसिकली, अदरवाइज दूसरी एंट्रीज के लिए तो मस्ट बी 1 ओनली, ठीक है। और हाँ सीडीएस के लिए भी हो सकता है, तो वही जो आपने प्रेफरेंस यूपीएससी फॉर्म में भरी थी वो यहाँ पे सेम भर देना है। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज, आपने कितने एसएसबी दिए हैं वो लिख दो यहाँ पर, और ब्रैकेट में कई बार जो पीआईक्यू ऑफिसर है वो बताते हैं कि भाई आपको लिखना है स्क्रीन आउट होएगा, और कई बार नहीं होता, तो आप प्लीज इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से जानिएगा। फिर डिटेल्स में भी कई बार वो सिर्फ जिससे आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए उसी की डिटेल्स भरवाते हैं, कई बार सारे की भरवा लेते, एक बार वाराणसी में सारों की भरवाई,
तो हाँ, आप इंस्ट्रक्शंस को काफी ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं PIQ का डिस्कशन। अभी मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। यस है तो बताइए। यस शिवांक। Sir, actually I have a doubt which is not related to the PIQ, sir. As we are at the end of the discussion, so I want to ask it. Sir, can I ask? अभी एंड तो नहीं है डिस्कशन का, पर अब अनम्यूट हो तो पूछ लो। Sir, actually my doubt is that as the result in the result of the CDS, the commission does not mention that what the candidates who had opted their first preference as Air Force, that what will their next step, as they mention for the candidates who opted IM and OTA as their first preference, that they have to create an account on joinindianarmy.com. So I was little bit confused that what is the next step for me if Air Force will reach me out, or what is the next process? मुझे लगता है जितना तो जॉइन नाम पे अकाउंट जो आपने बनाया वो इनफ है। बाकी मुझे सीडीएस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो इफ एनीवन हियर हैविंग द आंसर टू शिवांग भाई's क्वेश्चन देन प्लीज आंसर। जिनकी पहली प्रेफरेंस एयरफोर्स अकेडमी है कि उन्हें कहीं अकाउंट बनाना है, उन्होंने खाली बोला है कि जिनकी पहली प्रेफरेंस आईएमए और ओटीए है उन्हें joinindianarmy.com पे अकाउंट बनाना है, बस उन्हीं के लिए उन्होंने मेंशन किया है। गेटिंग यू भाई, गेटिंग यू, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे बता दूं आंसर, गलत तो नहीं बता सकते है ना। तो यहाँ अगर किसी और के पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो प्लीज आंसर। एनीवन शिवांग, यू कैन आस्क दिस डाउट इन डाउट सेक्शन ऑफ मैवेक्स ग्रुप, देयर समवन विल हेल्प यू। ओके ओके सर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। एनी अदर डाउट रिलेटेड टू PIQ? यस सुभजीत। So I want to respond to Shivank. As far as I know, अगर आप IMA या OTA पे जाना चाहते हो तो पहली बार जो आपका, अगर आप पहली बार SSB के लिए मतलब अपियर होने वाले हो तो तब आपको joinindianarmy.nic पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। And as the case with Air Force or Navy, I don't think you have to register, but for the benefit of doubt, you can ask any other person in the group. अगर आप आर्मी के लिए हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, वेलकम। ग्रेट। सो अभी तक हमने बात की PIQ फिलिंग पर और हमने बात की अचीवमेंट्स पर, पास्ट पर। यस मोनिका। I have a doubt in the mother tongue because sometimes जो मदर टंग होती है ना वो ऑफिशियली रजिस्टर नहीं होती। सो इज इट एनी कंपल्सेशन की हमारी जो मदर टंग है वो रजिस्टर होनी चाहिए एज ऑफिशियल लैंग्वेज? देखो, मदर टंग से मतलब है लैंग्वेज, इट्स नॉट डायलेक्ट। आपको बोली नहीं लिखनी, बोली तो दिया हमें हर चेंज हो जाती है, तो आपको लैंग्वेज लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, ऐसी वाली लैंग्वेज, तमिल। Okay, so let's now bring the discussion to interview. तो हम कल बात कर रहे थे knowing yourself, improving yourself, accepting yourself, and then expressing yourself in the speech. सिर्फ कहा था सोक्रेटिस ने, जो एक फिलोसोफर है, ठीक है। तो अब हम PPT वगैरह सब बंद करते हैं, सिंपल बात करते हैं कि इंटरव्यू में हमें इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखो, इंटरव्यू को अप्रोच करने से पहले वो इंटरव्यू हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में होना चाहिए। होगा तो हमें हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज को कलेक्ट करना पड़ेगा खुद के जीवन से। वो जो जानकारी है वो उठाकर एक पन्नों पर एक नोटबुक आप बना सकते हो इंटरव्यू के लिए। उसमें आप सिंपली, आप जब स्कूल में थे, स्कूल से अब तक आप जितने भी आपने एजुकेशन की है, जो भी चीजें सब की हैं, आप सब एक तरीके से जर्नल कीजिए सारी चीजों, ठीक है। जर्नल करने के बाद में आप क्या कीजिए कि आप जो वो होता है, याद नहीं आ रहा, हाँ, जितने भी आपके साथ लोग हैं, है ना, आपके साथ जितने भी लोग हैं, आपकी पूरी फैमिली, हर इंसान के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखिए, अच्छी पूरी बात सब, ठीक है। सेम डू फॉर योर नेबर्स, सेम डू फॉर योर फ्रेंड्स।
ठीक है, इसमें मजा भी आएगा करने में। और आप जो भी आपने अभी तक जीवन में है उन एक्टिविटीज के बारे में लिखिए। मैं अगर रनिंग की है तो आप रनिंग के लिए एक पेज पर लिख सकते हैं कि आपने पास में क्या क्या किया, आपको कैसे कैसे और क्यों क्यों किया, मतलब व्हाट हाउ व्हाई, ये कवर करते हैं आप। ठीक है, सो आपने इंटरव्यू के लिए ये नोट्स बनाए, एक तो आपने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी लिखी, प्लस में आपने जो जो एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो उनके बारे में लिखा, और आप जो पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके बारे में लिखा, और आपको जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज तो पहले से ही होगी तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी। अभी बात करते हैं हम CIQ, ठीक है, जो जो डिसाइड करते हैं कि फ्लो क्या होगा इंटरव्यू का, अगर आप हार्डकोर रिपीटर नहीं हो तो CIQ आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको CIQ चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे इस ग्रुप पे ऑलरेडी है, मैं उसकी लिंक वापस से भेज दूंगा, वहां से CIQ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो CIQ होता है, जैसे उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 6 CIQ होते हैं शायद, और उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इंटरव्यू अफसर क्या करते हैं, इनिशियली रैपो बिल्डिंग करते हैं। जैसे ही आप रूम खोलोगे, रूम में बैठोगे, अगर इंटरव्यूइंग अफसर का नेचर अच्छा है तो वो रैपो बिल्डिंग करेंगे, वो आपको कंफर्टेबल बनाएंगे उस सिचुएशन में, उस चेयर। वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि आप आज सुबह कब उठे, आज का क्या प्लान है, अच्छा क्या खाया, अच्छा सब चंगा ना, आप बोलोगे हाँ सब चंगा। फिर आप कंफर्टेबल हो जाने के बाद में फिर आप बताएंगे कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे नेक्स्ट 45 मिनट्स। तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको बताना है, और इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन इन फॉर्मल सेटिंग्स। वो आपको इस तरीके से बताएंगे, फिर वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे आपके पहले CIQ से। पहले CIQ में वो पहले आपको CIQ दिखा देते हैं, 1 मिनट। Right now, comprehensive information questionnaire। तो पहला CIQ आपसे पूछे जाते हैं, और कई बार अगर आप NDA एंट्री के लिए जा रहे हो तो वो 8 से पूछ लेते हैं, आप ग्रेजुएशन एंट्री के लिए जा रहे हो तो 10 से पूछ। They can also tweak it sometimes। So आपको रटना नहीं है, बस इससे आइडिया लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको एक साथ पूछने, और ये जो सारे क्वेश्चन है CIQ 1 में ये आपको एक साथ पूछे जाएंगे, आपको इन सब का आंसर एक साथ देना है। ये नहीं है कि आपको बिना सांस लिए की तरह देना है, पर आपको आराम से 3-4 मिनट में आप बोलते रहिए और इनका आंसर आप दे सकते हैं। तो क्या पूछेंगे, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अभी 10th से, और आपके एकेडमिक स्कोर हर क्लास सेमेस्टर में, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, द टीचर यू लाइक एंड why did you like them, the teachers you didn't like, why, subjects you like and why, the subjects you didn't like and why, subjects you were weak in, how did you improve on them, who are your best friends and why, tell your friends one good and bad quality, tell one quality from each of your friends that you like and want to love, the games and sports you participated in, extracurricular activities you took part in, state your achievements in these if any। So, और वो ये बदल भी सकते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकाल के और अलग टाइप की डाल, पर मतलब लगभग क्वेश्चंस यही रहेंगे। तो इट इज लाइक CIQ आपका थोड़ा सा सिलेबस होता है कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करो। तो आप ये सारे क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर प्रिपेयर कर सकते हो आपके इंटरव्यू, जो इंटरव्यू वाली नोटबुक है उसमें। और ये करने से पहले आप ये ध्यान देना कि आप वो करें, जो मैंने लाइफ स्टोरी वाली चीज बताई थी, इंसानों वाली चीज बताई थी, और एक्टिविटीज वाली चीज बताई थी, वो नोट्स पे लिखा कीजिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस का आंसर देना इजीली आप इनका आंसर दे पाए। ठीक है, मैं इसकी इस PDF की लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप कर सकते हैं अगर आपको अभी चाहिए। मैं वो रिकॉर्डिंग वाला जो कल का सेशन हमने किया था उसके रिकॉर्डिंग वाले मैसेज के साथ भी मैंने वो डाल रखा था, आप एंड मैसेज चेक कर सकते हो जनरल सेक्शन में जाके। ओके, सो इज अबाउट CIQ। इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन कर ली, नोट्स बना लिए, अब और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आप देखो।
सिर्फ आपको कंटेंट नहीं पता, कंटेंट पता है ठीक है, अब कंटेंट को ना आपको बोलना है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप इंटरव्यू में जब भी जा रहे हो तो यू आर वेल रेडी, आपका सब कुछ तैयार है, शर्ट प्रेस्ड है, सब कुछ, मतलब सब कुछ, आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए, ओहो क्या चल रहा हूँ मैं, ओहो क्या लग रहा हूँ मैं, ओहो क्या प्रिपरेशन है मेरी, इस तरीके से। हाँ, विजय भाई, इन सब की रिकॉर्डिंग का लिंक हम क्या शेयर करेंगे, आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, मैवरिक सर्च करो और @PAP ऑफिस भी साथ में। एनीवेज, लेट्स ब्रिंग बैक आवर फोकस ऑन द प्रीवियस डिस्कशन। दरवाजा बंद करिए भाई। प्रिपेयर कर लिया, अब आपको डिलीवर कैसे करना है। तो आप जब इंटरव्यू कॉल में जा रहे हो, तो हमने कल भी बात की थी कि नर्वसनेस कुछ नहीं होता, हमारा दिमाग भागता है फ्यूचर में, और फ्यूचर में होने वाले सर्कमस्टेंसेस को देख के डरता है, और वो हमें प्रेजेंट में अपाहिज बनाता है। सॉरी, गलत वे में नहीं बोल रहा, पर हमें ना एक तरीके से रोकता है, हमें डिसेबल करता है फ्रॉम टेकिंग फर्दर एक्शन और डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो वो नर्वसनेस है सिंपल सा। तो आप ये सिंपल सी चीज ध्यान रखिए कि जाने से पहले आप फोकस करिए कि इंटरव्यू वेटिंग कॉल में आप एक दूसरे से मजाकिया बात करें और भूल जाएंगे इंटरव्यू है, इंटरव्यू होगा तब चले जाना, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ेगा सोचने से। आप सिंपल डिस्कस मत कीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, अगर आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा टाइम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, पर अवॉइड कीजिए, ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन अवॉइड कीजिए, हंसी मजाक करिए, रोस्ट करिए एक दूसरे को, मजाक कीजिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, इंटरव्यूइंग हॉल से आप जिस बिल्डिंग में आपका इंटरव्यू होगा आप उसमें चले गए, वेटिंग हॉल में आपने ये सब किया, अगर कोई नहीं है तो आपने वो पढ़ी, क्या होती है, मैगजीन्स। हाँ, आज भी मैं कहीं इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ इंडियन एक्सप्रेस था, मैं वो पढ़ रहा था। तो आप ऐसे खुद के दिमाग को इंडल्ज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो आप कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। जब आपको बुलाया जाए, सिंपल पानी पीकर, अगर वहां पर पानी है नहीं है तो चले जाइए, और ध्यान रखिएगा कि स्माइल करते रहो, एवे ही स्माइल करते रहो, फोर्स करो खुद को स्माइल करने से, क्योंकि अगर आप स्माइल करोगे तो ऑटोमेटिकली इट इज साइकोलॉजिकल प्रूवन कि आपका मूड थोड़ा अपलिफ्ट होता है, तो मूड अपलिफ्ट होगा तो आप और स्माइल करोगे, तो वो एक साइकिल है, आप चलाए, आप अपनी बेनिफिट के लिए इसे यूज कर सकते हैं। फिर आप इंटरव्यूइंग हॉल में बैठे हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने हो, अभी आंखों में चमक के साथ, मुंह पे स्माइल के साथ सोचिए कि अब ये ना बहुत अच्छी बात होने वाली है मेरे जीवन पर, मैं वापस से कुछ सवालों के जवाब मैं खुद में ढूंढूंगा, और फिर उनको एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ, कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और फिर जब आप स्टार्ट हो, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको ना सुनना बहुत अच्छे से है, आप क्वेश्चन का अच्छा जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। क्वेश्चन को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे CIQ सारे आते हैं, बट स्टिल यार ध्यान से सुनो, क्या पता क्या चेंज करते हैं वो, है ना। ओके, तो हाँ, आप ध्यान दो कि क्या पूछा जा रहा है, और फिर उसके बाद में ये नहीं है कि आप शूट करो एकदम से बोलना स्टार्ट कर दो, नहीं, आप 1-2 सेकंड का पॉज लेकर सोच सको कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बताना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप थोड़ा और लंबा सोच सकते हो, पर आप जब जिस टाइम पे बोलो स्टेप लो, उसके लिए आपके दिमाग में पहले बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उस स्ट्रक्चर को बनाने के 2-3 सेकंड सोचते हो। इट इज आल्सो नोन एज द practice of articulation and well articulation in front of anyone. That will make your answers really well impacted. That influence the interviewing officer positively if you will have answers in a very manicured way, like आपको अच्छे से present करके उन्हें देना है आंसर। और जिस टाइम पे आप आंसर दे रहे हैं तो आप आई कांटेक्ट रखिए, और जरूरी नहीं है कि आप स्टेयर कीजिए, ठीक है। कई बार हम ये कंफ्यूज कर लेते हैं कि आई कांटेक्ट इज लाइक स्टेयरिंग, नो, यू कैन आल्सो मूव योर आईज हियर एंड देयर, और अगर आपको कहीं ईचिंग हो रही है पैर पे तो आप वो भी कर सकते हैं। हमें क्या सिखाया जाता है कोचिंग्स में कि नहीं भाई वहां जाके अपनी थाइस पर हाथ रखना है, वैसे स्ट्रेट बैठना है, नो यार, यू विल
you will get exhausted by that, uncomfortable हो जाओगे. अब comfortable रहो, पूरी चेयर कवर करो, पीछे सहारा लेना है सहारा लो, जैसे बैठना है वैसे बैठो. हाँ, पर ये टांग पे टांग नहीं रखना है. बाकी हाँ, मूवमेंट कर सकते हो. जैसे समटाइम्स हम अपना बॉटम खाते हैं तो आप वो कर सकते हो. आप खुद को ना रोकिए मत, ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा इस चीज पे. जैसे नेचुरली फ्लो में है वैसा करिएगा, और अभी से आदत डाल लो सीधा बैठ. ठीक है, और जिस टाइम पे सहारा लेके आराम से बैठ, सीधा सहारा लेके सीधा. इस टाइम पे आप आंसर कर रहे हो तो अगर हैंड अपने आप उठ के Yes, I've done my breakfast and I've completed my रोकना मत, बांधना मत. now I have अगर नहीं हो रहे तो जानबूझ के करना. ठीक है, दिस अबाउट हैंड मूवमेंट. आई का भी हमने बात कर ली. सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आप वो स्ट्रक्चर करके आंसर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको खुद को बताना चाहिए कि मैं मुंह खोलूंगा तो क्या बोलूंगा. ठीक है, आप मुंह तब तक मत खोलो जब तक आपको खुद को बताना हो कि मैं क्या बोलने वाला. तो आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर करना जरूरी है. प्लीज प्लीज इस बात पे गौर करिएगा. और जिस टाइम पे आप बोल नहीं रहे तो आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है. मुझसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा था कि राफेल कैसे उड़ते हैं. मैं राफेल की सीलिंग हाइट बता रहा हूँ, स्पीड बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया. और हाँ, एक और प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो ना थक चुके थे इंटरव्यूइंग ऑफिसर. वो अपनी चेयर पे कभी तो लेफ्ट साइड लीन कर रहे थे, कभी राइट साइड लीन कर रहे थे. ही वाज वेरी टायर्ड. ही वाज उबासी ले रहे थे, टाइम की तरफ बार बार देख रहे थे और बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे मुंह में बातें घुमा रहे हैं. तो आप अगर ऐसा केस है तो आप उन्हें ये बता जरूर दीजिए, सर please speak a little loudly, I'm not able to understand you. Or sir please speak a little slowly, I'm not able to understand you or get you what you are saying. तो ऐसे में अगर आपने बता दिया कि हाँ सर जो तो इंटरव्यू ऑफिसर को लगेगा कि यार मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा. अदरवाइज वो उनको लगेगा कि ये गधा सचिन, ये इसने तो मेरी बात ही सही नहीं सुनी, इसने तो क्वेश्चन सही नहीं सुना. राफेल वाला. ठीक है, तो आपको आपकी बात जरूर बतानी है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, सर दिस इज द प्रॉब्लम. मगर कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जहाँ बैठे हैं उनके पीछे से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है ना, और आपकी आंखों में बिल्कुल आपको देखा नहीं जा रहा है इंटरव्यूइंग ऑफिसर की तरफ. तो आप ये भी बात बता सकते, सर एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट कमिंग बिहाइंड यू, सो आई एम नॉट एबल टू सी यू क्लियरली. बस इतना ही बताना, आपको एडवाइस नहीं देनी सर जाके सर गो एंड क्लोज द विंडो. ओके, जस्ट टेल यू they will solve themselves. अगर नहीं भी करेंगे तो आपको कम से कम उन्हें आप अवेयर तो बना दोगे कि ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये चीजें हो रही थी, या फिर इसकी वजह से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था कैंडिडेट जो मेरे सामने बैठा. ठीक है, आपको अपना पर्सपेक्टिव जरूर बता देना अगर ऐसी कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो. हाँ, इंटरव्यू में ट्राई कीजिए कि आप पॉजिटिव चीजों के बारे में ज्यादा बात. मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल के सारी चीजों को पॉजिटिव बना दें. मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में, जो पॉजिटिव चीजें उनके बारे में ज्यादा बात, जो नेगेटिव है उनके बारे में बात करना अवॉइड करें. ठीक है, कि वो विशियस साइकिल हो जाएगी, उस पर बातें घूमती रहेंगी तो फिर वो ठीक नहीं रहता. फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड ट्राई टॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर facet of your life more. That will make the whole interview a positive process. This is about interview. एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं. कई बार तो वो ज्यादा प्रेशर डालने के लिए कैंडिडेट पे आंखें दिखाते हैं, चिल्लाते हैं कई बार, या फिर खड़े होकर अलग से एक्टिविटी करते हैं. तो आपको ये बात समझनी चाहिए, हमने कल भी इस पर बात की थी कि वो ड्रामा कर रहे हैं आपको डराने के लिए. ठीक है, आपको एक बार पता लग जाएगा ना कि आप बस एक बार ये चीज दिमाग में ले आओगे कि भाई ये जो आंखें निकाल रहे हैं ये ड्रामा कर रहे हैं, इन्हें सच्ची में कुछ नहीं इमोशन फील हो रहा, ये बस आपको डराने या आपको प्रेशराइज के लिए एक कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ड्रामे करके देख रहे हैं. तो आपको सिंपल, हाँ आई एम नॉट सेइंग कि वो ड्रामेबाज नहीं, भाई उनका काम है, उन्हें करना पड़ता है. पर आपका भी काम है कि आपको कूल और काम रहे, जो आपको बात बतानी वो ही बताएं, प्रेशर में आके मुंह में जो आए वो ना बक दे. ठीक, कई बार होता है कि हम इतना डर गए, हम डर के हमने ये सोचा कि यार कैसे भी इससे पीछा छूटे, और जो मन में आया वो बता दिया, जो सच भी नहीं था वो बता दिया. That's a problem. That's why I'm saying please don't get that much feared, that much pressurized. ये सब सिर्फ टेक्निक्स होती हैं, आप इनका ख्याल रखिए. ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है कि आके मुझे खा जाएंगे, कोई नहीं खाएगा। आप वहां पर बैठे हो, आप डिजर्व करते हो वहां प्लेस, आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है, आप डिजर्व करते हो वहां रहना, ठीक है। आपने आप स्क्रीन नहीं करते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप आराम से कॉन्फिडेंटली बैठे रहो। हाँ, ये भी नहीं कि आप उन्हें वापस घूरने लग जाओ, आप स्माइल करते रहो, पॉजिटिव रहिए, कूल रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए। दिस अबाउट मूड कि आप क्या रखना है। अब दूसरे काइंड ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और आपको लगता है अरे यार ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा दोस्त है, इतना अच्छा नहीं, पर आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ फ्रेंडली है, आपसे फ्रेंडली तरीके में बात कर, वो आपके फ्रेंड नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं बता देना, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही है जो आपसे फ्रेंडली या मधुरता से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, दोनों चीजों के बारे में आपको अवेयर रहना है कि कोई भी टेक्निक इंटरव्यूइंग ऑफिसर यूज करे, आप का जो सत्य है आप वही बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे सत्य बता दें, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो जीवन में आपने अच्छे काम किए हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे नोट्स बनाइए, और जो अच्छे नोट्स हैं उन नोट्स के हिसाब से आप आंसर देंगे, और उन नोट्स में अगर वो आंसर नहीं है तो लाइफ में जिन बेसिस पे आपने नोट्स बनाए थे, जिस बेसिस पे आपने जो लाइफ का सत्य है उससे आंसर दीजिए, ठीक है। झूठ बोलोगे तो पक्का फंसो, अवॉइड करो झूठ। अगर कोई बात है ना तो झूठ बोलने से ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसके बारे में बात करना अवॉइड करो, सिंपल। So that's all about interview. Any doubts? प्रतीक, हमने ये इन डिटेल साइट का लेक्चर कर लिया। अब मैं आपको वो भेज देता हूँ लिंक। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जनरल सेक्शन में भी वहां पर लिंक्स आते हैं, आप इस वाले चैनल पर जाके mavericks@peploSSB वो हैंड मूवमेंट्स, मैंने ये कहा था कि भाई अगर आप नेचुरली बात कर रहे हो और आपके हाथ अपने आप उठकर इधर उधर जा रहे हैं और हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो रोको मत, खुद को होने दो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके हाथ उठकर अपने आप नहीं जा रहे तो वहां रखें तो रखे रहने दो, ठीक है। नेचुरल जो है उसे फॉलो करो, ठीक है। Any other doubt? Anyone? Any other doubt? No. So shall we conclude today's session? Is there any review feedback session for me? So आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग YouTube पर मिल जाएगी। Thank you everyone for joining. Good night, जय हिंद। कल हम बात करेंगे GTO के बारे में। Good night, जय हिंद। Jai Hind everybody.